ایک آواز جو صرف گاتی نہیں تھی، ایک لڑکی جو اسکول یونیفارم میں آئی اور پوری دنیا پہ چھا گئی۔ شہرت، مخالفت یا قربانی، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ پاپ میوزک کا ریولوشن اور ایک ایسی زندگی جو بہت جلدی ختم ہو گئی۔ صرف 35 سال کی زندگی میں انہوں نے 75 سال جتنا کام کیا۔ یہ کہانی ہے نازیہ حسن کی۔ نازیہ حسن پاکستان کی پہلی پاپ سٹار ہیں جو صرف ایک سنگر نہیں بلکہ ایک سوچ بن گئی ہیں۔ یہ کہانی صرف میوزک کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ہمت کی، عظمت کی اور ایک لڑکی کی جو خود ایک ایرا بن چکی ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اسکول کی چھٹی کا دن تھا۔ نازیہ ہاف ڈے لے کر گھر آئی۔ امی نے کہا کہ آج اسٹوڈیو جانا ہے۔ لندن کا ایک چھوٹا سا میوزک اسٹوڈیو، سامنے بدو میوزک پروڈیوسر بیٹھا تھا۔ جب نازیہ اندر آئی تو بدو نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو اسکول یونیفارم میں ہے، 2 چٹیاں بنائے، بالکل خاموش سی کھڑی ہے۔ اس کے ذہن میں سوال تھا، یہ بچی گانا کیسے گائے گی؟ نازیہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتی تھی کہ بدو کے لیے سمجھنا بالکل مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی آواز میں اونچی بات نہیں کر سکتی، وہ اونچے سر کیسے لگا پائے گی؟ نازیہ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لندن کی آزاد ہوا میں پلی بڑھی ہیں۔ بدو نے نازیہ کو گانے کا ٹیون اور بول سمجھائے اور پھر آڈیشن شروع ہوا۔ وہ صرف ویسے ہی گاتی چلی گئی جیسے وہ گھر میں گاتی تھی۔ کوئی راگ نہیں، کوئی ٹیکنیک نہیں، بس دل سے گانا۔ گایا گیت تو بالکل ایسے ہی کچھ سمجھ کے ہی نہیں گایا۔ وہ اسکول سے آئی تھی، فرانسس ہالینڈ میں تھی اس وقت، گئی اسٹوڈیو میں، ریکارڈ کیا۔ آڈیشن مکمل ہوا اور وہ لڑکی واپس اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ نازیہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر جگہ میں تقریباً ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ انہیں یہ یاد بھی نہیں رہا کہ اس نے کبھی کوئی آڈیشن بھی دیا تھا۔ نازیہ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے اس کی زندگی کی کامیابی اور مشکل دونوں شروع ہونے والے ہیں۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ 15 سال کی اسکول گرل کی خوبصورت آواز بلاک بسٹر انڈین مووی قربانی کے ٹائٹل سانگ کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہے۔ نازیہ ایک ایکسٹرا آرڈنری لڑکی تھی۔ وہ دوسروں کی طرح نہیں تھی، وہ ان سب سے الگ تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک سمجھدار بچی تھی، یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، پہلا سانگ جو نازیہ نے گایا۔ گانا ریلیز ہوا اور ہر طرف سے سانگ کی دھوم مچ گئی۔ خوشبو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے کیسٹس فروخت ہوئے اور نمبر 1 رہے۔ خواتین و حضرات، بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکارہ نازیہ حسن۔ صرف ایک ہی دن میں لاکھوں کاپیز خریدی گئیں۔ انڈیا، پاکستان، دنیا بھر میں نازیہ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہاں سے فون آیا فلم فیئر ایوارڈ سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ نازیہ کو بیسٹ سنگر کا ایوارڈ ملا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ نازیہ تک کون پہنچا؟ دراصل نازیہ کی امی منیزہ بصر اور انڈین ایکٹریس زینت امان دوست تھیں۔ ایک دن زینت امان لندن میں ان کے گھر آئی۔ اس نے گھر میں گٹار دیکھا اور پوچھا، یہ کون بجاتا ہے؟ منیزہ نے بولا، میری چھوٹی بچی ہے نازیہ، وہ گاتی ہے۔ نازیہ اسکول سے واپس آئی تو زینت نے نازیہ کو کہا کہ نازیہ کچھ گا کے ہمیں سنائے۔ انٹروورٹ نازیہ نے اپنے مختلف انداز میں کچھ شرماتے ہوئے کچھ ان کے لیے ضرور گایا اور ان کی فرمائش پوری کی۔ زینت امان نے اپنے دوستوں کے لیے ایک پارٹی رکھی جس میں فیروز خان فلم پروڈیوسر وہاں پر بھی موجود تھے۔ وہاں منیزہ بصر بھی تھیں، نازیہ کے ساتھ محفل میں شریک ہوئی۔ پارٹی میں نازیہ نے ایک گانا گنگنایا۔ فیروز خان کو نازیہ کی آواز نے اتنا متاثر کیا کہ وہاں پر ہی انہوں نے نازیہ کو گانا گانے کی آفر دی اور پھر وہی ہوا جو ساری دنیا نے دیکھا۔ اس لمحے نازیہ تو خوش تھی، لیکن ان کے والد بصر حسن پریشان۔ وہ سمجھا رہے تھے،
अगर नाजिया ने एक बार शो बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो तालीम जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नाजिया ने उन्हें यकीन दिलाया, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। बासिर हसन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई मगर फिर मान गया, लेकिन वक्त ने दिखाया ये फैसला उनके लिए ज़िंदगी भर का पछतावा बनेगा। कुछ ही दिनों बाद नाजिया और उनकी वालिदा मुंबई को रवाना हो चुकी थीं। गाना उसी टिपिकल रिदम और म्यूज़िक पे बनना था जो बिद्दू के हर गाने में झलकती थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और जब वो रिलीज़ हुआ तो जैसे हर तरफ नाजिया की धूम मच गई। सिर्फ एक दिन में 1 लाख कॉपीज़ मुंबई में खरीदी गईं। 7 महीने में ये सॉन्ग 1 मिलियन प्लाटिनम क्लब में शामिल हो गया था, जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। फिल्म कुर्बानी ने 12 करोड़ का बिजनेस किया। नाजिया जब कोलकाता आई, एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में लोग उनका एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। 1981 डिस्को दीवाने नाजिया हसन का पहला एल्बम मार्केट में आया और छा गया। पहली बार हिस्ट्री में किसी पाकिस्तानी का गाना ब्रिटिश चार्ट्स में जगह बना पाया। भारत, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दुनिया के 14 ममालिक में इस एल्बम ने 6 करोड़ कॉपीज़ फरोख्त की। नाजिया सिर्फ सिंगर नहीं रहीं, वो अब यूथ आइकॉन बन गई थी। कभी फ्रॉक, कभी जंपसूट, कभी लेदर जैकेट, वो नौजवानों की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। लोग कहते थे कि म्यूज़िक और पढ़ाई साथ नहीं चल सकती थी। नाजिया ने गलत साबित किया। लंदन की रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। अच्छा, आप लोग तो यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे विलायत, तो फिर पढ़ाई छोड़ दी वहाँ पे? और तो ये किसने कहा? एक आपके टीचर ने। किधर है वो टीचर? यही नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री भी ली। 1991 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर इंटर्न के तौर पर भी काम किया। फिर यूनिसेफ में सर्विसेज दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप भी मिला, लेकिन कैंसर की वजह से वो ये स्कॉलरशिप ना ले सकी। ये वही नाजिया थी जो स्कूल यूनिफॉर्म में ऑडिशन देती थी, और यही नाजिया थी जो यूएन में काम करती थी। 1995 में बिद्दू ने इंडियन फिल्म के लिए गाना मेड इन इंडिया तैयार किया। वो चाहते थे कि नाजिया इस गाने के लिए अपनी आवाज़ दे। गाने के बोल कुछ ऐसे थे जिसमें एक लड़की एक ऐसी आइडल की तलाश में थी जो इंडियन हो। नाजिया एक पाकिस्तानी होते हुए ये नहीं कर सकती थी। अपने मोहसिन के साथ ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में ये गाना अलीशा चिनाय ने गाया। 1986 में बॉलीवुड फिल्म मैं बलवान में गाने का ऑफर आया। म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी। नाजिया रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची तो उन्हें बताया गया कि मेल सिंगर किशोर कुमार होंगे। किशोर कुमार एक बहुत बड़ा नाम। ये नाम सुनते ही नाजिया के हाथ फूल गए। वो तो बचपन ही से उन्हें सुनती आई थी। वो उनकी आवाज़ की दीवानी थी। नाजिया को लगा कि वो किशोर कुमार के सामने कभी भी नहीं गा पाएंगी। इतने में किशोर कुमार खुद स्टूडियो में आए और आते ही नाजिया की तारीफ़ों के पुल बांधे। नाजिया की जान में जान आई। उन्हें यूं लगा जैसे किशोर उन्हें बरसों से जानते हैं। कुछ ही देर में नाजिया ने बहुत आसानी से हल्ला गुल्ला करें हम और रॉक एंड रोल रिकॉर्ड करवा दिया। नाजिया को लगता था कि ये गाना सुपर हिट होगा, लेकिन सुनने वालों का अपना ही मिजाज होता है। इस गाने को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो नाजिया के पहले गानों को मिलता रहा है। 1980 में जब जनरल ज़िया का वक्त था तब पीटीवी पे बहन भाई साथ गाते थे, लेकिन इन पर इल्ज़ाम लगे कि दोनों बहन भाई इस्लामिक कल्चर को पामाल कर रहे हैं, मगरिबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई फैलाने और रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म करने जैसे इल्ज़ामात लगे। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर उनका आना बंद कर दिया गया। तो एक प्रोग्राम किया इन्होंने पीटीवी। अच्छा, उसमें उसने कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ ये कर इनका भी, और ये इतना वो जनाब इस पर लैद दे हुई, और उन्होंने मुतालबा किया कि इन दोनों बहन भाइयों को मुल्क बदर कर दिया जाए। अच्छा। नई नस्ल में बेहयाई और फाशी फैला रहे हैं। ओके। और नए कल्चर को, जो बाहर का कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और बहन भाई के रिश्ते का तकद्दुस भी ख़त्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा जी। नाजिया की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया।
कई नौजवानों के दिल टूटे। अचानक उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 30 मार्च 1995 नाजिया ने मशहूर पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से शादी की। इश्तियाक बेग कहता है ये मोहब्बत की शादी थी। नाजिया उनकी बहन आफरीन बेग की दोस्त थी। ख़ानदान का मिलना मिलाना रहता था, लेकिन नाजिया के भाई ज़ुहैब इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। नाजिया कराची शिफ्ट हुई। बहुत बड़ा घर मिला, दुनिया की हर आसाइशें मौजूद थीं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि दोनों मियाँ बीवी रेल की पटड़ी की तरह साथ साथ चलते हुए भी दूर थे। ज़ुहैब आज तक कहता है इट वॉज अ कम्प्लीटली फेल्ड मैरिज। फिर जो है उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो भी सही नहीं थी, और मैं तो अब कह सकता हूँ कि इट वॉज अ कम्प्लीटली फेल्ड मैरिज। पाकिस्तान के अखबार डेली जंग ने नाजिया के बारे में शाये किया, जिसमें उन्होंने पहली बार उन मुश्किलात के हवाले से बात की कि नाजिया के हस्बैंड इश्तियाक बेग उनके साथ कैसे पेश आते हैं। नाजिया हसन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था, वो सोशल वर्कर के रूप में भी खुद को देखती थीं। नाजिया ने थर के बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठे किए, लियारी में मोबाइल हॉस्पिटल बनाए ताकि डिप्राइव्ड लोगों तक दवाई पहुंच सके। 1992 में शादी से पहले नाजिया में ओवेरियन कैंसर की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने नाजिया को बता दिया था कि बच्चे होने का इम्कान बहुत कम है और ना होने के बराबर है, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए। 7 अप्रैल 1997 उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिनका नाम रखा गया अरीज़ हसन। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक करिश्मा था, लेकिन अब नाजिया के पास वक्त बहुत कम रह गया था। जब वो कैंसर से लड़ रही थीं तो शायद उन्हें महसूस हो गया था कि वो ज़्यादा देर तक इस कैंसर से और नहीं लड़ पाएंगी। लंग कैंसर डायग्नोज होने के बाद नाजिया की तबीयत मुसलसल ख़राब होने लगी और उन्हें लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, मगर 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो दुनिया से चल बसी। नाजिया हसन सिर्फ पॉप सिंगर नहीं थी, वो एक आवाज़ थी, एक सोच थी, एक लेगेसी जो दिल से गाती थी, जो दिल से जीती थी, और वो कभी खामोश नहीं होगी।